Test number 6, topic is permutation and combinations. In your book, this is your chapter number 7. Question number 1, find n. If np4, it means in sample paper it is written as pn4, and this may be written as np4, meaning is same. But simplification is, if this is 4, we have two methods of this formula. N factorial divided by n minus 4 factorial is one method. Second, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. We will write upper 4 terms because it is 4. Starting from n minus 1, we have 3 terms cancelled. Your answer is n is equal to 9. And second questions, NC7 is equal to NC17. The formula is, if NCR is equal to NCP, then either N is equal to R plus P or R is equal to P. But 7 is not equal to 17, therefore N is equal to 17 plus 7, 24 is your answer. In question number 3, actually the concept is the LCM of 7 factorial, 8 factorial and 9 factorial is 9 factorial. It means I will multiply 9 factorial on both sides. If I multiply here 9 factorial by 7 factorial, it becomes 72. 9 into 8. 9 factorial by 8 factorial, it is 9. 9 factorial by 9 factorial, it is 1. Answer is 81. So you should apply the method of taking LCM. In question number 4, how many different arrangement of letter of the word independence can be formed vowels always occur together? I have collected the vowels. There is one I and 4 E. These are the consonants. The total 7 consonant plus vowels considered 1 unit. 8 factorial divided by 3 factorial is for N, 2 factorial is for D, into vowels के लिए 5 factorial divided by 4 factorial. Simplify करेंगे. This is your answers. कॉन्सेप्ट में आपको लिखना भी यही पड़ेगा. 1-2 लाइन टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेना कि कंसीडर्ड ऑल वावल्स टू बी 1 यूनिट. टोटल 7 consonants are there. 7 consonant plus 1 vowel becomes 8 factorials. Question number 5. In how many ways can 5 boys, 3 girls be seated in a row? No 2 girls together. Gap method. Boys arrange करेंगे. There are 6 gaps and 3 girls can be taken in 6p3. 5 boys can be arranged in 5p5. Text form में आप इसको खुद लिख सकते हैं. तो 6p3 is 120, 5p5 120. This is your answer. So you will write here the lines that 5 boys means there are 6 gaps where the girls can be seated. The girls can be arranged 6, 5, 3. Boy can be arranged 5p5. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n if 2nc3 is 2 and c3 is 11 is to 1. कॉम्बिनेशंस में सॉल्व करने के लिए यही टेक्निक रहती है कि ncr is equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial. और शॉर्टकट मेथड रहता है 2nc3 अगर आप 3 टर्म्स लेंगे. फर्स्ट इज 2n, सेकंड इज 2n minus 1, थर्ड इज 2n minus 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. परमुटेशन में नहीं होता, इसमें होता है. बट इसमें इसका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 तो 4 रहेगा. n और n minus 1 कैंसिल हो जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 6 आएगी. So this is your answers.
क्वेश्चन नंबर 7, out of 5 men and 2 women, a committee of 3 person is to be formed, at least 1 woman. At least 1 woman means 2 कैटेगरीज बनेगी, एक वुमेन लेंगे तो दूसरे 2 मैन लेंगे, 2C1 into 5C2, फिर 2 वुमेन लेंगे तो एक मैन लेंगे, 2C2 into 5C1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 plus 5 that is 25. So this is your answer. Question number 8. A team of 8 players is to be selected from a group of 12 players. तो पहले हमने 12C8 ले लिया. Followed by a captain and vice captain from the 8 selected. जब 8 selected people में से captain and vice captain लेना तो ऑर्डर की जरूरत है, इसलिए into 8P2 आएगा. ये ध्यान में रख लेना. बिकॉज आपने 8 सिलेक्टेड पर्सन में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन लेना है, तो इट मींस दैट कैन बी टेकन इन 2 वे. अरेंजमेंट जरूरी है, इसलिए हमने 8P2 लगाया. या ये भी कह सकते थे आपकी कैप्टन कैन बी टेकन इन 8 वे, देन वाइस कैप्टन कैन बी टेकन इन 7 वे. तो 12C4 into 8P2 को सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज योर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 9 है, in how many way can the letter of the word permutation be arranged so that these always 4 letter between P and S. अगर P और S के बीच में 4 लेटर डालेंगे तो ये 4 होंगे और इधर 6 लेटर्स आ जाएंगे, क्योंकि टोटल परमुटेशन में 12 लेटर्स होते हैं. तो P and S मैंने 1-6 का मतलब है P 1 पे रहेगा और 6 पे S रहेगा. 2-7 मीन्स ये केस भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये. तो टोटल ये 7 केसेस हैं. P और S इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए आपने 2 भी लगा दिए. अब टोटल 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज P इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. तो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल मुझे पता है कि 5040 होता है, तो मैंने यहाँ 10 इंटू 8 इंटू 9 रख दिया, इसको अलग कर दिया, और 7 फैक्टोरियल अलग कर दिया बिकॉज आई नो दिस इज 5040. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. 8 children are to be seated on a bench. How many arrangement are possible if the youngest child sit in a corner? अब कोई भी बेंच के ऊपर कॉर्नर 2 होते हैं, लेकिन बैठना एक ही चाइल्ड ने है, तो दैट कैन बी टेकन इन 2 वे. एंड टोटल नंबर ऑफ नाउ द चिल्ड्रन लेफ्ट इज 7, तो दैट इज 7 फैक्टोरियल. तो आंसर इज 2 इंटू दिस, आंसर इज दिस वन. मतलब आप पूरा गैप्स बना सकते हैं कि आइदर द स्टूडेंट्स कैन बी सिट ऑन दिस वे और दिस वे. बाकी की 7 पोजीशंस आप अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल्स. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स. अब डिजिट्स आपके पास यहाँ पे 4, 6, 0, 6, 7, 4 and 6. 4, 6, 0, 6, 7, 4 and 6. Now since the number 0 is present, so we will use a 0 concept. Total number is 7, so I will write 7 factorial divided by 3 factorial 2 factorial. Now the number will not start from 0, so I will exclude the 0. It means 6 factorial by 3 factorial by 2 factorials. इसमें आपने ये लिखना है कि नंबर कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसमें 0 कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. अगले काम के लिए मैंने 6 फैक्टोरियल और ये सब कॉमन ले लिया. देखिए अगर मैं 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो ये 7 माइनस 1 बचेगा. तो यही कैलकुलेशन आएंगी, आंसर विल बी 360. इसमें 0 कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि पहले हम टोटल नंबरों में से ले रहे हैं, हम इसमें ये नंबर भी ले रहे हैं,
जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मतलब है कि नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो ग्रेटर देन 1 मिलियन नहीं आएगा। ग्रेटर देन 1 मिलियन तभी होगा जब ये टोटल 7 डिजिट नंबर होगा, वो तब पॉसिबल होगा जब 0 बीच में आना चाहिए। इसलिए पहले हम टोटल ले लेते हैं 0 जहां मर्जी हो, फिर हम वो नंबर माइनस कर देते हैं जब 0 इसमें होता है, इसलिए हम ये कंसेप्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a polygon has 44 diagonals, find the number of sides of a polygon। diagonal means joining the alternating points होता है, मीन्स अगर हम इस टाइप से कोई फिगर बना ले ए बी सी डी, तो हम एक डायगोनल ये कहते हैं मीन ऑल्टरनेटिंग पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ के जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइनें NC2 होंगी, माइनस एन जो साइडें होंगी वो माइनस कर दिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, आगे फैक्टर बनाएंगे तो n जो है नंबर ऑफ साइड 11 आ जाएंगे। बस यहाँ डायगोनल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। How many words each of 3 consonants and 2 vowels can be formed using the letter of the word involute? Involutes में ये 4 vowels हैं, 4 consonants हैं। आपने 3 consonants लेने हैं 4C3 से, 2 vowels लेने हैं 4C2। अब ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के बाद पांचों का अरेंजमेंट करना into 5 फैक्टोरियल भी करना है। दिस इज द मिक्स क्वेश्चन ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो आंसर विल बी 24 into 120। दिस इज योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो का क्वेश्चन है, हमने दो टर्म्स ले ली हैं, n-1 CR ये ले लिया 6/9। इसमें कॉम्बिनेशंस का फार्मूला ये वाला यूज किया, NCR इज इक्वल टू, और आपको पता है कि ये n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से n नीचे रहेगा, n-1 कैंसिल हो जाएगा, n-r फैक्टोरियल n-r से ये कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन ये है, अगर आप इसको और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दूसरा रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा ये NCR था, आपने लिखा n-r, ये n+1 CR, मैंने भी यहाँ दोनों को माइनस कर दिया। नीचे n था, ये वाला n था नीचे, यहाँ पे मेरा क्या है नीचे n+1, मैंने n+1 लिख दिया। मतलब दूसरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का टाइम हम बचा सकते हैं अगर हम ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व कर लें। दो इक्वेशनें आ जाएंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, n और r की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 15 है, दो रेशियोज दी हुई थी NCR और ये, मैंने वही फार्मूले से लगाए हैं, सिंप्लीफाई करें। अगर वही चीज आप इसको और इसको ऑब्जर्व करें, देखो r+1 मीन ये r+1 है, तो यहाँ पे क्या है ये r+2 लिख दिया। n-r मीन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को भी मैंने माइनस कर दिया। तो हम इसको सिमिलरली लिख सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन में वी कैन सेव आवर टाइम्स। और फिर हमने दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया, ये फर्स्ट आई थी, ये सेकंड आई थी। सॉल्व करने के लिए आप मेरा वही शॉर्टकट टेक्निक्स रख सकते हैं कि n इज इक्वल टू, n के कोएफिशिएंट निगलेक्ट कर दो, +24 आएगा, -10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -5 + 6। अब देखेंगे कि ओरली आप 14 निकाल सकते हैं। तो जो कैलकुलेशंस के मेथड बताए जाते हैं आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। ये इजी था, n = 3r, सीधा सब्स्टिट्यूट भी हो जाता, तो यहाँ 12 आ जाता, तो -r, तो r की वैल्यू 4। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 15। ध्यान से अपने आंसर्स को टैली करिए। इन टेस्ट का जो वीडियोस बनाने का पर्पस यही है कि सो दैट एवरी स्टूडेंट्स कैन टैली आंसर्स वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू लिसन, बिकॉज इसमें मैंने एक्सप्लेनेशंस बहुत कम दी होती हैं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना होता है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ।